Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. RBI is a dream organization. Now, any person who wants to be banker, he or she has a dream to work in RBI. Whether he is already employed in banking or he or she is employed elsewhere, many people, they live with a dream to enter RBI at any level. And every year, when the year starts, lakhs of aspirants, they start asking one question, Sir, when RBI assistant will come? Sir, when RBI grade B will come? Now, these are two examinations that is eagerly awaited by lakhs of people. Now, if we look at the history of RBI or the organization structure of RBI, RBI is an organization which controls the entire financial system. And what are the functions of RBI? There is a comprehensive video on this channel. But at the same time, over the period of time, we observe that RBI is not an organization which require more and more staff year after year. Because they are not opening new offices. Because they are already self-contained. And with the adoption of technology, some of the activities are now less important that were used to be handled by RBI. And that's why over a period of time we are observing that RBI recruitment is erratic. RBI is not recruiting assistant every year. That is their base staff, which is called class 3 or clerical staff, although designation is assistant. In earlier days, they were called the note and coin examiner also. The basic role of class 3 or assistant in the initial years of RBI was to handle with currency. With more and more currency just going into the supervision of different banks, the people required to handle cash at RBI offices has come down drastically. Now currency chests are being managed by various banks and the bank staff is deputed there, maybe nationalized bank, maybe public sector bank, and they seek the reimbursement from RBI for their salaries. So as far as cash transactions are concerned, RBI need not recruit staff in their cadres. Now, RBI is focused on value addition. That means they require staff at a level which is involved in various research work, various supervisory duties, and managing the monetary policy or the foreign exchange things at a country level. So that's why the type of people they require are also very, very different. A person who has general qualifications, ordinary qualifications, may not fit in their scheme of things. And this dilemma makes RBI very, very choosy about selection process for their officer cadre. In RBI, the officers cadre are called grade A, grade B, C, and so on. In earlier years of RBI, they were used to recruit grade A as well as grade B directly from the
market. Then they found that the stuff they are getting at grade A may not be up to their expectations, and then they preferred that the people from assistant grade should move to grade A, and the eligibility was very, very flexible in the earlier years. Now, of late, we are hearing, although there is no confirmation on this, that now the management feels that RBI assistant should not be given chance to move grade A so early. So they are insisting that the eligibility be made rigid. From earlier few years, now they want it as around 10 years through test, maybe 20 years through seniority, and which is being resisted by the unions. And there is a, you can say, something going on between union and management, where we feel and we are getting the feelers that talks are going on. And that's why the news whether grade A will come or not is becoming erratic. Similarly, RBI assistant will come or not is getting erratic, because they require very less people at the assistant level, as people from the assistant will not move to the grade A. So the vacancies that were used to arise on account of promotion may not arise, because the people those joined in last 3-4 years, they may not be getting chance to become grade A. So they will be struck at the assistant level. So that has made the picture very, very hazy. Whether assistant will come or not, whether grade A will come or not, whether grade V will come or not. So there are so many news going on in the social media. People from their own sources, from their own links are trying to gather the information, but there is no official information emerging. I also try to gather the information. I talked with some of our candidates, those are working in RBI at various cadres. Some are assistant, some has already got promotion as grade A, and some joined as grade B, and some are even at higher ranks. Because when I was in Punjab National Bank, I was in close touch with RBI, because I was placed in Delhi and we were used to visit RBI Delhi very frequently, because I was holding a position where I was deputed by my bank to attend meetings at RBI. So I have my own friend circle in RBI. And from our family also, there are many people, those are working in RBI. So overall, when I talk with these people, I get a feeling that there is no clear-cut decision at any level. Whether assistant will come or not, whether grade A will come or not, whether grade B will come or not, there is no clear-cut, you can say, information emerging from any corner. But when I talked with some people are hinting that management is inclined on grade B. That is their hint, but they are not confirming. And some of them are taking clue that RBI grade B may come with very little vacancies. So if you are waiting for RBI, if you are already employed, there is no harm in preparing for RBI and appear in competition as and when it comes. But if you are unemployed, my advice is, instead of waiting for this regulatory body exams, focus on those exams where you can get a job. And these jobs are there in SBI as junior associate, if you have already filled the form, in shape of SBI PO, or this year notification, the 6 notifications that may come
during the year from RRB, IBPS clerk, IBPS PO, IBPS SO, then SBI junior associate, SBI PO, etc. If you are unemployed, I think you should focus on those exams where you can get a job. Having craze for RBI is good, but whether RBI will recruit the staff, that mist is not yet clear. Because there are many discussions are going on in RBI, whether they require staff, if they require staff at what level, and unless those things are ironed out, notification cannot be drafted. Okay? So as of now, if I talk of today, there is no clear-cut information on this, although there is some hint that RBI grade B with very little vacancies may emerge. But people are not sure about grade A or assistant vacancies, although there are a lot of vacancies in grade A, whether these will be offered from the promotion if they reduce the eligibility criteria and the unions are successful in getting the old criteria implemented, or they will be filled from the open market. The scene is still not clear, and I am not having any confirmed information on this. I can only say that if you are already employed and no other future exam is in hand with you, you can continue to prepare for RBI grade B. But if you are unemployed, my advice is focus on exams that can settle you, get you a job, and thereafter you can dream of other exams when, as and when these comes. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। RBI एक ऐसी संस्था है जिसके साथ जुड़ने का हर व्यक्ति का सपना है, खासकर उन व्यक्तियों का जो बैंकिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे भी व्यक्तियों का जो RBI में जाना चाहते हैं मगर बैंकिंग में नहीं है। RBI एक ड्रीम जॉब है, ये आज से नहीं है, जब से RBI है तब से है। RBI जाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, मगर जो लोग मेहनत करते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि RBI है क्या, RBI का काम क्या है, RBI क्या करता है। इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस चैनल पे है, फंक्शंस ऑफ RBI, उसको समझिए, क्योंकि RBI के फंक्शन निर्धारित है और उसके अंदर कोई एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, अनलाइक अदर बैंक्स। तो इसलिए आप देखेंगे कि RBI के जो ऑफिसेज हैं वो बहुत ही सीमित शहरों में हैं और वहाँ भी जो एक्टिविटी की जा रही है वो भी काफ़ी सीमित है। अगर हम अर्लियर डेज की बात करें, खासकर जब हम लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते थे या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते थे, तो RBI में एक पोस्ट होती थी नोट एंड क्वाइन एग्जामिनर, जिसको आजकल आप असिस्टेंट बोलते हो। उस समय इसको नोट एंड क्वाइन एग्जामिनर के नाम से ये पोस्टें निकलती थी क्लास 3 की, जो क्लर्क होते थे, क्योंकि कैश की हैंडलिंग मुख्यतः RBI करता था और बैंक्स डायरेक्टली RBI से कैश लेते थे, तो बहुत सारे कैशियर्स की रिक्वायरमेंट होती थी RBI को। और जो नोट की अदला बदली है, कटे फटे नोटों को बदलना है, बैंकों से करेंसी लेनी है, बैंकों को करेंसी देनी है, ये RBI कार्य किया करता था। इसलिए क्लास 3 एम्प्लॉइज या जो PM कैडर के एम्प्लॉइज है उसकी बहुत ज़रूरत होती थी RBI को। धीरे धीरे RBI ने करेंसी चेस्ट एस्टेब्लिश कर दिए नेशनलाइज्ड बैंकों में, स्टेट बैंक में, अन्य बैंकों में। जो करेंसी चेस्ट होता है वो RBI का ही ऑफिस होता है, मगर उसमें स्टाफ उसी बैंक का होता है जिस बैंक की सीमा में वो होता है।
तो वो नेशनलाइज बैंक का एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टेट बैंक का एम्प्लॉय भी हो सकता है, किसी अन्य बैंक का एम्प्लॉय भी हो सकता है, और उसकी सैलरी रीएम्बर्स करता है आरबीआई, क्योंकि वो आरबीआई के बिहाफ पे काम करता है। अब क्योंकि आरबीआई वो दूसरे बैंकों के एम्प्लॉय से काम करवा रहा है अपना कैश का, तो अब उसको कैशियर चाहिए नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नोट एंड कॉइन एग्जामिनर है वो डेजिग्नेशन चला गया बैकग्राउंड में, और एक नया डेजिग्नेशन आ गया असिस्टेंट। और असिस्टेंट रैंक की कुछ रिक्रूटमेंट्स होनी शुरू हुई, हालांकि वो भी संख्या कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि जो ऑफिसेज हैं आरबीआई के वो बहुत लिमिटेड हैं, सीमित हैं। मगर क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के लोग प्रमोशन पाके ग्रेड ए ग्रेड बी इस तरह आगे बढ़ते चले जाते थे, तो कुछ वैकेंसीज उनकी रिटायरमेंट की वजह से और कुछ वैकेंसीज उनकी प्रमोशन की वजह से बनती रहती थी, और 2-3 साल में एक बार आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होने लगा। मगर अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या आरबीआई असिस्टेंट आएगा या नहीं आएगा, ये आपका प्रश्न है। अधिकांश लोग हर साल ये प्रश्न पूछते हैं, साल शुरू होता है पहली कमेंट ये आने लगता है कि सर आरबीआई असिस्टेंट कब आएगा, सर आरबीआई ग्रेड बी कब आएगा, क्योंकि ये दो एग्जाम ऐसे हैं जो यदा कदा होते हैं। आरबीआई ग्रेड तो रेगुलर हर साल होता आ रहा है पिछले कई सालों से, और असिस्टेंट 2 साल 3 साल में एक बार होता चला आ रहा है। तो ये प्रश्न हर बार आता है, और लोगों का ड्रीम है कि मैं आरबीआई में घुस जाऊं, असिस्टेंट बन जाऊं या ग्रेड बी बन जाऊं। अब हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आरबीआई का जो काम ही है वो क्या है, एक तरह का रिसर्च का काम है, सुपरवाइजरी काम है, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है, तो उनको जो स्टाफ चाहिए वो एक इस तरह के चाहिए जो इस तरह की नॉलेज रखते हो और इस तरह के काम को हैंडल कर सके। इसलिए जो सिलेक्शन है आरबीआई का वो बहुत ही भिन्न है अन्य सिलेक्शन से। तो पिछले कई सालों से आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज आ रही हैं, मगर वो घटती जा रही है, और पिछले साल तो काफी कम थी। उसका कारण ये है कि अगर आरबीआई के लोगों से आप बात करेंगे, या जैसे कि हमारे काफी कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं, कहीं ग्रेड ए में भी वह मूव कर चुके हैं, कहीं सीधा ग्रेड बी गए थे और कुछ मैं लोगों को जानता हूं, जब मैं पीएनबी में था तो हम आरबीआई में जाया करते थे, हमारी मीटिंग्स थी, मैं पीएनबी को रिप्रेजेंट करता था आरबीआई में जो मीटिंग्स होती थी। तो वहाँ भी कुछ लोग मुझे उस समय के जानते थे, चाहे वो अब रिटायर हो गए चाहे वर्किंग हैं, और काफ़ी मेरे रिलेटिव्स भी आरबीआई के अंदर हैं। तो उससे मुझे कुछ ना कुछ आरबीआई के बारे में बात सुनता रहता हूँ, मगर अभी किसी के पास भी कोई डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। इतना जरूर चल रहा है कि जो असिस्टेंट से ग्रेड ए की प्रमोशन होती थी उसकी एलिजिबिलिटी को लेके कुछ डिस्कशंस चल रही हैं। पहले ये काफ़ी कम होते थे, कम पीरियड में ही लोग एलिजिबल हो जाते थे, अब उसकी 10 साल या 20 साल, मेरिट से 10 साल और सीनियरिटी से 20 साल करने की कुछ इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। कंफर्म मैं नहीं कह सकता इसको, क्योंकि जब तक ऑफिशियल बात नहीं आती तो हम ऑफिशियली उसको कह भी नहीं सकते। और जो स्टाफ स्ट्रेंथ लोगों ने आरटीआई के थ्रू जानी है या इधर उधर लोगों को पता है, उसमें वो देख ही रहे हैं कि ग्रेड बी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उतनी ही वैकेंसीज हैं। ग्रेड ए के अंदर वहाँ पे कुछ खाली लग रही थी वैकेंसीज, तो उससे काफ़ी लोग आपस में डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकाल के बैठे हैं कि ग्रेड ए आ जाएगा, ग्रेड बी आ जाएगा, या ये हो जाएगा। मगर अगर आप वहाँ के लोगों से बात करते हो, जैसे मैंने भी बात की है, किसी के पास भी कोई डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है कि ग्रेड ए आएगा कि ग्रेड बी आएगा, और बी आएगा तो कितनी वैकेंसीज के साथ आएगा। हालांकि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ग्रेड बी के आने की संभावना बढ़ती जा रही है, शायद मैनेजमेंट एग्री कर रही है, मगर कम वैकेंसीज के साथ आरबीआई ग्रेड बी आ सकता है, पर किसको अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि मैं निरंतर बातचीत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ इंफॉर्मेशन मिले तो आपके साथ शेयर करें। 2-3 दिन से आप निरंतर पूछ रहे हैं, पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाई है। पहले मुझे किसी ने बताया था कि शायद ये एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में हो जाए, फिर कुछ और लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि सर अभी तो कुछ भी पाइपलाइन में नहीं है। कुछ लोग बातें उस समय कर रहे थे कि ग्रेड ए आएगा,
जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि सर आने को तो ग्रेड बी भी आ सकता है, ग्रेड ए में वैकेंसीज तो है, वो आएगा कि नहीं आएगा अभी कहीं पे ऐसी बात नहीं है। तो पूरा कंफ्यूजन है इसके अंदर। आपको मैं सारी बात इस लंबी वीडियो में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी निरंतर क्वेरीज आ रही है इसके ऊपर, तो आपको हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए। देखो, जब तक आरबीआई ये फैसला नहीं कर लेता कि उनका इस साल की क्या प्लानिंग है, कितने उनको असिस्टेंट चाहिए, कितने उनको ग्रेड ए चाहिए, कितने उनको ग्रेड बी चाहिए, तो अगर हम ये कह रहे हैं अब आ रहा है नोटिफिकेशन या इस दिन आ रहा है, ये तो फिर एक कोई कंफर्म बात ना हुई ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है वो तो फैसला करे कि हमें इतने असिस्टेंट चाहिए, हमें इतने ग्रेड ए चाहिए, हमें इतने ग्रेड बी चाहिए। और ग्रेड ए चाहिए तो प्रमोशन के माध्यम से भरेंगे इसको या ओपन मार्केट से भरेंगे। तो जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकता कि ये नोटिफिकेशन इस दिन आ जाएगा। ठीक है, पहली बात हमें ये समझनी है। तो जिन भी लोगों का ये ड्रीम है कि मुझे आरबीआई में जाना है, उनको मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं। पहले कैटेगरी तो वो है जिनको नौकरी लग चुकी है, किसी न किसी बैंक में किसी न किसी पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं या किसी अन्य संस्था में काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब लगी हुई है, कंफर्टेबल है। अगर वो आरबीआई की तैयारी करते रहते हैं तो उनका कोई लॉस नहीं होगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसको अपीयर हो जाएंगे और उस टफ कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाएंगे, या किसी रेगुलेटरी बॉडी में जाना चाहते हैं उसको क्रैक कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अभी एक भी जॉब नहीं लगी है जिनकी, अगर वो सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं कि आरबीआई आएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा या किसी रेगुलेटरी बॉडी का आएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा, तो उनको हो सकता है कि बाद में रिपेंट करना पड़े। उनको मेरी सलाह यह है कि जहां नौकरी मिल रही है पहले उसको तलाशिए। जैसे अभी एसबीआई जूनियर एसोसिएट का प्रोसेस चल रहा है, अगर आपने भरा हुआ है, मेन के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, उस पर फोकस करिए। अगर एसबीआई पीओ आपने दिया हुआ है, एसबीआई पीओ पे फोकस करिए। इस साल 6 नोटिफिकेशन बैंकिंग के आएंगे, उस पर फोकस करिए। आरआरबी का आएगा, क्लर्क का, ऑफिसर का, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई पीओ भी आएगा, उन पे फोकस करिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। और अगर हम एक बहुत बड़ा ड्रीम ही लेके बैठे रहेंगे और वहां सामने से वैकेंसी नहीं आती है तो आपकी उम्र तो निकलती जाएगी। क्योंकि ये मान के चलिए कि आरबीआई बहुत अच्छी संस्था है, इसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। आरबीआई में जो फैसिलिटीज हैं, सैलरीज हैं, अनमैच्ड है विद अदर बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या वो वैकेंसी आ रही है, क्या वो सीट आपको कंपटीशन में मिलने जा रही है, ये यक्ष प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा बेटर है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कंपैरिजन कर दो, आज भी किसी ने कहा आरबीआई असिस्टेंट और पीओ में कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन तो मैं तब करूं जब वो पोस्ट ऑफरिंग के लिए है। जब सामने कुछ है ही नहीं है और आपको पीओ की सिलेक्शन हो चुकी है, आप पीओ ज्वाइन करो ना। जब वो आएगा उस समय देख लेना, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे बात करके देख लेना। क्योंकि मैं इंटर कंपैरिजन्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। अगर एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो उसको पहले नौकरी पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसको नौकरी मिल चुकी है, ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद कोई ऑफरिंग आती है तो उसको कंपैरिजन करना चाहिए कि उसको वहां जाने में फायदा होगा या वर्तमान व्यवस्था में बने रहने में फायदा होगा। ये इंडिविजुअल चॉइस के अनुसार आपको कंपेयर करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। तो जो सूचना अभी तक की थी वो मैंने सम अप कर दी, जो जो मुझे पास्ट में सूचनाएं मिली थी वो मैंने बता दी। कई बार कुछ लोग कहने लगते हैं कि सर उस वीडियो में आपने ये बता दिया था, अब इस वीडियो में ये बता रहे हो, क्योंकि ये मान के चलें कि ये दुनिया डायनेमिक है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारा काम है जो जिस समय सूचना मिले और हमारे मन को वो जच रही है कि ऐसा हो सकता है, वो आप तक मैं पहुंचा दूं।
पर हर सूचना में एक राइडर है, वो संभव भी है और संभव नहीं भी है, ये आप मान के चले। क्योंकि सूचना कब सूचना है? जब उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन ले लिया, जब उस ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी शुरू कर दी या नोटिफिकेशन निकाल दिया, तब तक वो संभावना ही है। जब यह बात आप समझ जाएंगे तो आप फिर अननेसेसरी ब्लेम गेम में नहीं आएंगे। क्योंकि अब कई लोग कोई इंफॉर्मेशन देते हुए डरने लगे हैं, बताने से कतराने लगे हैं। क्योंकि होता क्या है, वो बता बैठते हैं, फिर वो होता नहीं है, फिर उनका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है और वो डर जाते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, हमने तो फ़ायदे के लिए बताया था, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए लोग। तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी आपकी मदद करना चाह रहा है, उसके पास जो भी सूचना तंत्र है वो तो उसके बेसिस पर ही आपसे बात करेगा ना। पर अथेंटिकेट इंफॉर्मेशन कब होगी? जब वो डिपार्टमेंट जिसने रिक्रूटमेंट करना है उसकी कोई अधिसूचना निकाल दे। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में आखिरी मिनट तक भी कई बार कशमकश चलती रहती है कि ये करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। इसलिए अगर किसी को कहीं खबर मिल गई कि कुछ फाइल चल रही है, जरूरी नहीं है वो फाइल अल्टीमेटली क्लियर हो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।